Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe. And today we will continue with the John Donne's poem. And today we will begin with the poem The Flea. The Flea is again very important and very beautiful poem. And let's have a look on this poem without wasting much time. And first of all, I will recite the poem as always. So let's start. The Flea. Mark but this flea, and mark in this how little that which thou deniest me is. It sucked me first, and now sucks thee. And in this flea our two bloods mingled be. Thou knowest that this cannot be said a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two. And this, alas, is more than we would do. Oh, stay, 3 lives and 1 flea spare, where we almost, nay more than married are. This flea is you and I, and this our marriage bed and marriage temple is. Though parents grudge and you were met and clustered in these living walls of jet. Though use make you apt to kill me, let not do that self-murder ordered be. And sacrilege, 3 sins in killing thee. Now last and final third stanza. Cruel and sudden hasn't thou since purpled thy nail in blood of innocence. Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee? Yet thou triumphest and sayest that thou findest not thyself nor me the weaker now. 'Tis true, then learn how false fears be. Just so much honor when thou yieldest to me will waste as this flea's death took life from thee. So this is the poem. Now we'll have a look on its critical appreciation. So let's begin with the critical appreciation of this poem. First of all, the title The Flea is a conceit. A conceit है यहाँ पे. Conceit term आपने obviously सुना होगा. Specifically अगर हम बात करें जॉन डन की, तो मेटाफिजिकल पोएट्री की अगर हम बात करें तो कंसीट्स जो हैं वो यूज करते हैं. तो ये फ्ली यहाँ पे एज ए कंसीट यूज किया गया है. ठीक है, एन एक्सटेंडेड मेटाफर इन दिस पोम. और ये एक टाइप का एक्सटेंडेड मेटाफर है इस पोम में. सो द फर्स्ट स्टैंजाज एक्सप्लेनेशन इज द पोएट बिगिंस दिस पोम एड्रेसिंग हिज बिलवेड. ये तो हमें पता ही चल गया कि वो जब हम पोम रीड कर रहे थे तब भी हमें ये चीज रियलाइज हो गई थी कि वो कहीं ना कहीं अपनी बिलवेड को एड्रेस कर रहे हैं. तो दिस इज राइट, आप एकदम सही गेस कर रहे हैं. वो अपनी बिलवेड को जो है यहाँ पे इस पोम में बिलवेड को अपनी बिलवेड को एड्रेस कर रहे हैं. He says, look at this flea and you will see how small the thing that you deny nearly is. It sucked me first and now it sucks you. And in this way, this flea, our 2 bloods are mingled together. और वो बोल रहा है कि उस flea ने क्या किया है, पहले तुम्हें सक किया, फिर मुझे सक किया, और उससे क्या हुआ है कि हमारा जो ब्लड है ना दोनों का, वो मिंगल हो गया है उस फ्ली के अंदर. ठीक है. You know that this isn't sinful or shameful and it's not a loss of maidenhead or virginity. वो बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ है, मेरा और तुम्हारा ब्लड क्या हो गया. हम इन द सेंस अगर हम नॉर्मल टर्म्स में अगर देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों उस फ्ली के अंदर एक हो चुके हैं, और इससे तुमने अपना मेडन हेड भी नहीं खोया. इससे हमें कोई किसी तरीका का डिसग्रेस जो है हमें नहीं मिला है ना. तो ये है, और हम क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं. And yet the flea gets to enjoy your blood without courting you first, and it grows fat digesting our combined blood, and that is more than we are allowed to do.
So this is the first stanza. Or now let's have a look on the second stanza's explanation. Further, the poet says, wait, don't kill the flea because it contains 3 lives in it in his life. वो बोल रहे हैं कि सुनो, अपनी बिलवड को बोल रहे हैं कि प्लीज उस फ्ली को तुम मारना मत, क्योंकि उसके अंदर 3 लाइफ्स है. ऑब्वियसली एक तो फ्ली की खुद की, एक उसने ब्लड सक किया उसकी बिलवड का उसका, और एक उसका पोएट का खुद का. तो वो बोल रहे हैं, इस सेंस में वो बोल रहे हैं कि 3 लाइफ जो उसके अंदर है, तो तुम प्लीज उसको मारना मत. ठीक है, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर लाइफ. और वो मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अंदर 3 लाइफ किस किस की है. हिज लाइफ, हर लाइफ एंड द फ्लीज ओन लाइफ. पोएट की खुद की लाइफ, उसकी बिलवड की लाइफ और फ्ली की खुद की लाइफ. इन दिस फ्लीज बॉडी वी आर ऑलमोस्ट नो मोर देन मैरिड. और इस तरीके से हम मतलब एक मैरिज से भी ज्यादा एक क्लोज रिलेशन जो है वो हमारा हो गया है. मोर मतलब हम मैरिज से भी बढ़कर उसमें एक हो चुके हैं. तो पोएट जो है वो चीज कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. दिस फ्ली इज यू एंड आई, इट इज आवर मैरिज बेड एंड आवर मैरिज टेम्पल. ये इस फ्ली में मैं भी हूं और तुम भी हो, और ये हमारा मैरिज बेड जो है ना वो ये फ्ली है, और हमारा जो मैरिज टेम्पल है वो भी ये फ्ली है. ठीक है. दो आर पेरेंट्स डिसअपियर आर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जो है हमारा उसको हमारे पेरेंट्स डिसअप्रूव करते हैं. सॉरी, डिसअपियर नहीं, डिसअप्रूव करते हैं. ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को, जो तुम्हारा और मेरा जो रिलेशनशिप है पोएट का और उसकी बिलवड का, उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं उनके घर वाले. तो वो ये चीज बोल रहे हैं कि वो डिसअप्रूव करते हैं, लेकिन वी आर सेफ विद इन द डार्क लिविंग वॉल्स ऑफ दिस फ्ली. लेकिन हम यहाँ पे सेफ हैं, ये जो डार्क लिविंग वॉल्स हैं फ्ली की, इसके अंदर हम सेफ हैं. Though you may want to kill me, do not add suicide and sacrilege to your list of sins. 3 sins will come from coming the flea. वो बोल रहे हैं हो सकता है तुम मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फ्ली के अंदर तुम याद रखना कि तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी जान बचती है. तो वही बोल रहे हैं कि उस फ्ली को तुम मत मारना, क्योंकि अगर तुम उसे मारोगी ना तो तुम अपने ऊपर सिन ले लोगी. किस चीज का सिन ले लोगी? ऑब्वियसली वो बोल रहे हैं कि तुम सिन ले लोगी सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस का. तुम सुसाइड का जो एक तुम्हारे पे ब्लॉट लग जाएगा, तो वो चीज मत करना प्लीज. मेरे लिए मुझे मार दो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज उसको मत मारना, खुद को मत मारना, उसको मत मारना. किसको? फ्ली को. नाउ द थर्ड स्टैंजा. Then the poet says, cruel and unpredictable woman, have you stained your nails purple with flea's innocent blood? वो बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया है, क्या तुमने अपने हाथों को पर्पल कर लिया है? अपने हाथों को जैसे कहते हैं ना, खून से सन गए हैं तुम्हारे हाथ, कि उसने क्या किया है, क्या तुमने उसको मार दिया? क्वेश्चन कर रहे हैं वो. यानी कि तुम इतनी क्रूअल हो गई, इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई कि तुमने उस फ्ली को मार दिया. द फ्ली इज गिल्टी ऑफ नथिंग बट सकिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम यू. उस फ्ली का क्या गलती थी? उसका गिल्ट इतना ही तो था, उसकी जो गलती, उसकी मिस्टेक इतनी थी तो कि उसने तुम्हारा एक बूंद जो है ब्लड का सक कर लिया, इसलिए तुमने उसको मार दिया. ठीक है. एंड नाउ यू हैव गेन विक्ट्री ओवर द फ्ली एंड सेज दैट नीदर यू नॉर आई वीकर फॉर किलिंग इट. और तुमने अब विक्ट्री तुम्हें मिल गई उसको मार के, उस फ्ली को मार के, जिसने तुम्हारा सिर्फ एक ब्लड का ड्रॉप सक किया था, उसको तुम्हें मार के अब विक्ट्री मिल गई. पोएट इज सेइंग, ठीक है, दैट्स ट्रू इनफ एंड यू शुड लर्न फ्रॉम दैट हाउ फॉल्स योर फियर्स आर. अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो फियर्स हैं, तुम्हारा जो डर है वो कितना फॉल्स है, कितना गलत है. ठीक है. यू विल लूज एज मच ऑनर व्हेन यू गिव virginity to me as this flea's death took from you. ठीक है. So this is the third stanza. और द फ्ली इज एन इरोटिक मेटाफिजिकल पोम. सबसे पहले तो आप लिखिए इरोटिक, EROTIC. ये इरोटिक मेटाफिजिकल पोम है. ठीक है. द एग्जैक्ट डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन इज अननोन. एक्चुअली इसकी जो एग्जैक्ट डेट है कंपोजिशन की इस पोम की, ये थोड़ी ये फिक देयर इज नो श्योरिटी कि इस ईयर में ये जो है
ये पोम कंपोज की गई थी, बट इट इज प्रोबेबल एंड डन रोड दिस पोम इन द लेकिन ये पोम ये प्रोबेबली हम लगा सकते हैं कि 1590s में उन्होंने ये पोम लिखी होगी, व्हेन ही वाज अ यंग लॉ स्टूडेंट एट लिंकन इन before he became a respected religious figure as Dean of St. Paul's Cathedral. ठीक है, तो ये तो थी हमारी पोम। और अगर हम देखें इसमें कि क्या क्या पोएटिक क्वालिटीज क्या क्या यूज हुई है, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं, तो हम सबसे पहले बोलेंगे इसमें एसोनेंस यूज हुआ है। ठीक है, एसोनेंस यूज हुआ है, ASSONANCE, एसोनेंस यूज हुआ है। यहाँ पे इमेजरी यूज हुई है, मेटाफर यूज हुआ है, यहाँ पे कंसीट तो यहाँ पे है ही, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये है यहाँ पे इसमें इस पोम में होने वाली जो पोएटिक डिवाइसेस जो हैं जो यूज हुए हैं वो है, आई रिपीट इट वंस अगेन, एसेंस, इमेजरी, मेटाफर, कंसीट। और तो हमारी ये जो पोम है फ्ली, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। और वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड safe. We will meet in the next class. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe this channel. Thank you so much.